हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 164। तो चले स्टार्ट करें। 164 आर्टिकल सेज अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। 164 आर्टिकल says other provisions as to ministers. Number 1. The chief minister shall be appointed by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister, and the chief minister shall hold office during the pleasure of the governor. Provided that in the states of Chandigarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha, there shall be a minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes or any other work. 2. First A. The total number of ministers of including the chief minister and the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assemblies of the state, provided that the number of the ministers, including the chief minister in a state, shall not be less than 12, provided further that where the total number of the ministers, including the chief minister and the council of ministers, in any state at the commencement of Constitution 91st Amendment Act 2003 exceeds the said 15% or the number of the specified in the first proviso as the case may be, then the total number of the ministers in that state shall be the brought in conformity with the provisions of this clause within 6 months from such date as the president may by public notification appoints. Number 1B. A member of the Legislative Assembly of a state or either house of the legislature of a state having legislature having legislative council beholding to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2nd of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause first for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to the legislative assembly of a state or either house of the legislature of a state having legislative council as the case may be before the expiry of such period till the date on which he is declared election whichever is earlier. Number 2. The Council of Ministers shall be the collectively responsible to the Legislative Assembly of the state. Number 3. Before a minister enters upon his office, the governor shall administer to him the oath of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the 3rd schedule. Number 4. A minister who for any period of 6
consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister. Number 5. The salaries and allowances of the ministers shall be such as the legislature of the state may from time to time by law determine and until the legislature of the state so determines shall be as specified in the third and the second schedule. तो आज मैं अभी दो अनुच्छेद को ही पढ़ूंगी, आर्टिकल 164 एंड 65। अब मैं पढ़ती हूँ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। 165 आर्टिकल सेज एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, यानी राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 165। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। Number 1. The governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of a high court to be advocate general for the state. Number 2. It shall be the duty of the advocate general to give the advice to the government of state upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the governor and to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force. Number 3. The advocate general shall hold office during the pleasure of the governor and shall receive such remuneration as the governor may determine. अब मैं हिंदी में पढ़ लूँ, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेती हूँ इसके बारे में, दोनों अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात करता है। मुख्यमंत्री, नंबर 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। नंबर एक का किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। क्या कहा जा रहा है? एक काम में कहा जा रहा है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, परंतु ये और कि जहां संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति उक्त 15% या अपने परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे 6 माह के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी।
1 का खा, किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निहरित है, अपनी निरहरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां तक वे ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वे निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्हरित होगा। नंबर 2, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नंबर 3, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए रूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। नंबर 4, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। नंबर 5, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 165 कहता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। नंबर 1, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ये राज्यपाल का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो राज्य के जुड़े जो कानूनी मामलों पर मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो उस महाधिवक्ता को उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है नियुक्त होने के लिए अहरित है किसी व्यक्ति को जिसमें क्वालिफिकेशंस होती, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। नंबर 2, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वे उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। नंबर 3, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। तो आज मैंने इन 2 अनुच्छेदों को पढ़ा है, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 165। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 166। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। और हाँ, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरे जो वीडियोज़ हैं उस पर कमेंट करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और लाइक करें। तो ठीक है, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।